my name is Amla. I'll be hosting today's launch event. And firstly, I would like to thank all media and friends, those who are here. Firstly, thank you for your patience that aap itni der tak wait kare. And we are a little late to start. But now, let's kick started, guys. So, welcome to the trailer launch of NRI Live Productions' first Holly Bolly film, which is NRI Vibes, Great Stories of Love versus Desire. Can we please have it like a huge round of applause for the entire team, everybody? So, ladies and gentlemen, we are also delighted to launch the very first song of the same. So, the song is known as O Purvaiya. And this song is like a beautiful song which features, of course, our lovely Bhagyashree and a very handsome hunk, heartthrob, Hiten Tejwani. So this song is sung by Chandana Dixit. So we're going to play that as well. But before the further ado, let me invite a lady entrepreneur. Let me give a quick introduction of hers. She is the producer, writer, actor, creative head of NRI Wives Grey. Of course, Great Stories of Love versus Desire. Can we please have Gunjan Ji with me right here? So can we have the mic for her? Thank you, appreciate it. So, first of all, मैं आप ही की तरह एक पत्रकार थी करीबन 20 साल पहले जी एंड फिर टिपिकल अरेंज शादी हो गई और हाय तो फिर यहाँ से मूव करके आए just like many NRIs शादी करके I moved to USA. I'm not very well prepared but I'll say कुछ छोटी छोटी बातें जो दिल से हैं. हर ज़िंदगी एक कहानी सी होती है, right? And हमारे NRI वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं which are yet to be told. A lot of unsaid stories. And a lot of stories which have been told till date about NRIs are about missing home. हम इंडिया को मिस कर रहे हैं. Yes, of course. हिंदुस्तान हमारे दिल में उस कदर तक बसता है कि आप सोच भी नहीं सकते. You know, we are very stuck in time people. हम अपने रूट्स से, वैल्यूज से बहुत बहुत करीबी तरीके से जुड़े हुए हैं. Believe it or not, when we come to India, we feel कि हम गाँव से उठ के शहर में आए हैं बहुत बार. So we are progressive, but yes, very stuck in time people, indeed. Now I wanted to say that, so हमारी ज़िंदगियाँ जिस तरह से फिल्मों के थ्रू दर्शाई गई हैं कि बहुत ही ग्लैम लाइफ है. Let me tell you, there are lots of pros and cons of our lives, lots of ups and downs. हम बर्तन भी खुद ही मांजते हैं बहुत बार. हमारे पास उतनी शोफर ड्रिवन लाइफस्टाइल नहीं होती है. यस, पैसा होता है, घर खरीद लेते हैं, गाड़ी हो गई, बट देन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी करना है. तो वी हैव, एवरी लाइफ हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. यू नो, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट? हमारे इंडिया में अभी भी सब सोचते हैं, ओ NRI, मुझे कनाडा जाना है, वो मेरे को वीज़ा लगा दो जी, मैनू अमेरिका जाना है. यू नो, बट देन आई वांटेड टू समहाउ शो कि यस, यू नो, there is goodness, but there is we wanted to show real life inspired stories of NRIs. You know, it's not just glam. Let's show you what struggles we go through, to be honest, you know. So no, I mean, I'm not trying to discourage कि मत आइए आप, but just wanted to show the real life, that's all, you know. So now हमारे दिल में, I know Bollywood term is not very you know, appreciated sometimes in our Indian film industry, but क्या करें, we Indians are stuck in time people and हमारे दिल में Bollywood बसता है. We love our Indian film industry, or even though we live in Hollywood, but we still look up to Bollywood big time. मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ. So we want to create NRI Bollywood, क्योंकि बहुत सारे NRIs मेरे जैसे मूव नहीं कर सकते अपने बच्चों को, फैमिली, फाइनेंशियल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर मुंबई. कैन वी? नो. सो क्यों नहीं हमारे पास इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं, थोड़ा बहुत टैलेंट है, इंटेग्रिटी है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो व्हाई नॉट टू क्रिएट ब्यूटीफुल फिल्म्स विच आर अनटोल्ड स्टोरीज in our amongst our NRIs in the NRI Bollywood region. So एक वो छोटा सा एक सपना था, और आई एम अ एवरेज नेक्स्ट डोर मॉम, पर बहुत सारे अच्छे लोग, एंजल्स जुड़ते गए और ये कारवा बनता गया. मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक सिर्फ मतलब एक साधारण सी 2 बच्चों की माँ हूँ, एक
छोटा सा सपना था और आई ओनली न्यू ए एंड जी और just like manifestation, universe blessed me with lot of angels and lot of stars who I have no idea how they agreed and why they agreed. But I'm honored and in awed of their, and I'm out of words till date. So, what I also wanted to say is that, yes, NRI Vibes now. A little bit, just 2 lines, I won't bore you much. NRI Vibes is good people, how good people, हम ये लोग एलियंस नहीं होते जो ग्रे शेड्स दिखाते हैं, राइट? हाउ गुड पीपल कैन शो ग्रे शेड्स टू इन ऑड लाइफ सर्कमस्टांसेस. और हमारी ज़िंदगियाँ जो बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी आर फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स, सो हम बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं. हमारे पास, जैसे मैंने बताया, कि उतनी सुविधाएं नहीं होती जितनी यहाँ पर हैं, राइट? हम यहाँ पे इफ़ यू हैव गुड मनी यू कैन हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, बट ओवर देयर आपको लॉन मोइंग भी करनी है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, स्नो क्लीनिंग करनी है. सो रिलेशनशिप्स गेट वेरी इंटरट्वाइंड एंड हाउ आर रोलर कोस्टर इम्पैक्ट्स हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप. खैर, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आप लोग उसमें अपनी छवि नहीं देख पाएंगे. लोग चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, पीपल आर मोर अलाइक देन डिसअलाइक. वी आर वेरी वेरी सिमिलर एज वेल इन मैनी वेज, टू बी ऑनेस्ट. बस ये कि हमारी रुकावटें कुछ अलग हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ अलग हैं. So, sorry. And then these are, yes, one more important thing I wanted to add. These are very bold stories, I'll be honest. Very, very bold stories. But मुझे कईयों ने बोला जब मैंने फिल्म बना ली कि यार इसमें मीट नहीं है, स्किन शो नहीं है. बट मेरा इंटेंट ये था कि why do we need to incorporate nudity for the heck of it? ज़रूरी है क्या? अगर बोल्ड स्टोरीज बनानी है, दिखानी है, तो उसमें इन न्यूडिटी दिखाई जाए, स्किन शो दिखाया जाए. आई डेंट वांट टू क्रिएट सॉफ्ट पॉर्न. देयर इज इनफ सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट ऑन इंटरनेट आउट देयर. वी वांटेड टू शो कि यार ये गुड पीपल हैं, कोई भी बुरा नहीं है. कसम से आप फिल्म देखेंगे ना, आपको कोई भी किरदार बुरा नहीं दिखेगा. आपको सिर्फ कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, राइट? आपको कहीं ना कहीं होपफुली अपनी नहीं तो किसी और की थोड़ी थोड़ी छवि दिखेगी. और इसीलिए, क्योंकि हमारी फिल्म्स में हमने उनको इम्प्लाइड, ग्रेसफुल, एलिगेंट वे से प्रेजेंट करने की एक इच्छा थी, इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इतने खूबसूरत स्टार्स, दे एग्रीड. अदरवाइज दे वर सरप्राइज्ड कि हाउ वी आर टचिंग बोल्ड स्टोरीज, वेरी यूनिक स्टोरीज. आई वुड से, hopefully you'll agree to that, very unique stories, but in a graceful, implied way, elegant way. Otherwise, भाग्यश्री हैं, समीर सोनी हैं, जुगल हंसराज हैं, अदिति, सादिया, everyone, amazing actors that we have, Raima Sen, Hiten Tejwani, Sameksha, all and more who are not here yet. They all agreed because आपको एक थोड़ा different cinematic experience दिखेगा. Yes, these are 4 stories, interconnected, 4 stories, which are great stories. I think I'm taking too much of your time. I'm almost done. So lastly but not the least, but that ये film is not just my baby, like I said. इसमें बहुत सारे लोगों का, community का सहयोग रहा. उनके बारे में आपको मैं बाद में मिलाऊंगी. पहले हम ट्रेलर देखते हैं, then of course she will be introducing our amazing cast. Thank you guys. Thank you Gunjan ji. Thank you very much. I think इन्होंने इतना सारा कुछ बोल दिया है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. जो भी कुछ बोला है, she has just said it from her heart. And I have few questions, like इसमें 4 अलग अलग stories है, right? So उस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ट्रेलर लॉन्च करते हैं. I would request my team to please showcase the trailer. But let's begin with Bhagyashree, everybody. And now I would request Hiten Tejwani to please join her along. And आपने स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है. I am so thrilled actually. I have a very first question, गुंजन जी, from you, like आपसे. ये जितनी भी स्टोरीज है, क्या आपने रियल लाइफ में ऐसा कुछ देख के इंस्पायर होके स्टोरीज लिखी है या फिर कैसे? Of course, first of all, this question was not planned, let me tell you. So, of course, हर कहानीकार कहानियों से ज़िंदगी जीते जीते और देखते देखते ही बनता है, right? तो ये yes, to be honest, these are real life inspired stories. कुछ देखी हैं, कुछ सुनी हैं, कुछ महसूस भी की हैं. तो hopefully everyone should be able to little bit relate to it.
Thank you. अच्छा, now I have a question to Hiten and Bhagyashree. भाई मेरे को एक बात बताइए, क्या आप दोनों ने पहले काम किया है साथ में ऐसे स्क्रीन पे? पहले काम किया है, हाँ। साथ में स्क्रीन पे नहीं? तो ये स्टीमिंग हॉट केमिस्ट्री हमें कैसी दिखाई दी? ये कैसे आप लोग डेवलप करते हो यार? ये स्टीमिंग हॉट केमिस्ट्री ही होती है। नहीं मैंने अच्छा ओके, दैट वाज अ लिटिल डीप आंसर। या हितेन? नहीं कुछ प्लान नहीं था, बस वी वर डूइंग द सीन्स और वो हो गया एंड कर दिया। पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इट्स लुकिंग नाइस है। एब्सोल्युटली। Yep. थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे मूड है आंसर करने का क्वेश्चन, आंसर करने का क्वेश्चन। हाउ इज द होल? गुंजन को बोली थी मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगी। इस पर मीम भी बन रही है। Kiku and me, we were so reluctant कि You're gonna get so famous, you're already famous, but हर एक का मूड होता है बातें करने का, मीडिया के साथ में बातें करने का, इंटरेक्शन करने का, काम करने का। Yep. So how was the entire experience? And Kiku हमारे साथ यहाँ पे तो नहीं है, but can you please share? Coming soon. Yeah. Kiku was so much fun to work with, especially Gunjan. I mean, she's like full of energy and I mean ये चुप ही नहीं होती थी, हमें बोलना पड़ता था कि शॉट शुरू करें गुंजन। But yeah. True. Yeah, I would agree. Yeah. So Okay. it was a lot of fun, full of energy, full of, I mean, people who are actually passionate about work. I mean, nobody, I think, here worked for money or for any other benefits, I must say. No, I mean- wanted to go to the US. Okay. Okay, holiday. Yeah. Cool. Okay, so another question I have for Sadia. So हमने बहुत सारा प्यार देखा, बहुत सारा प्यार. So आपका क्या कहना है इस प्यार के ऊपर? Like lots of love which we saw on the screen, the different kind of love we crave for. So what's your take on that? What's my take on love? Yeah, what's your take on love? Your kind of love. My kind of love. On screen love. On screen. Yes, you have seen the trailer, so there is a lot more in the film. I like that. A Wait lot for that. more. Okay, so Aditi, how was your experience and could you share some experience with us? Sure. So, hi everybody, good afternoon. It was truly a wonderful experience because I think I was the last addition to the whole crew and it was my fault because I did not respond to Gunjan. जो platform पे उन्होंने मुझसे connect करना चाहा, I thought it is one of the many, unfortunately. But जब उन्होंने बताया कि ये सब stars लोगों के साथ इन्होंने already काम किया है, so ऐसे चलो मैं बात कर लेती हूँ कि authentic है कि ऐसे ही कोई message भेज रहे हैं. So I called up Bhagyashree, I spoke to Sameer and they said, हाँ, we've had great experience, you must go. So मैं गई, वहाँ पे shoot किया, चाहे विधि हो या you know the whole crew, Amit हो, इनके husband and Gunjan. It truly was a wonderful experience. Of course, Samiksha, Kiku, Irfan, इनके साथ मेरी story है. तो ये story एक unmatched या mismatched couple की है. I don't want to say anything else. आप story देखिए, बहुत interesting है. Thank you, thank you. And Sameer sir, what's your take? How was your experience? Yeah. I think as far as the experience is concerned, it was great, obviously. और हम लोग काफ़ी हंसी मजाक कर रहे हैं कि बॉम्बे अमेरिका जा रहे थे तो ये कर लिया. But honestly, if you see the film in totality, it I think is a pretty unique film. I don't think, in fact, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ. Looking at the cast we've got together, I think अभी Jugal Hansraj is not here, Gaurav Gera is not there, Kiku is not here. So to get such a cast, and we all have been around for a long, long time, but never got an opportunity to work together. So to get such kind of cast together, I don't remember last time कौन सी फिल्म में ऐसा हुआ था. And ये भी नहीं है कि that she has not done justice to any of the characters. Each character is very important to the story. So that's one thing. And the topic. I think she had sent me the script and bold stories. मैं थोड़ा डर गया था, मैं यार ये भी क्या करवाएगी. But when I read the script, it's so tastefully done. I think in today's day and age, I think everyone, like she said, Gunjan very nicely said that everyone's going to relate to it. And एक जगह है ऐसी फिल्मों के लिए जो I think जो explore नहीं की गई हैं. Because normally हम जब NRIs की बात करते हैं तो वही होता है ना, शाहबाज
तो सब NRI ऐसा नहीं कर रहे होते. So they are very interesting topics. Each story, my story deals with an open marriage. So, but very tastefully done, and hats off to you, Gunjan. I mean, I can never, and to her husband who lent her to us for so long. So really, I've seen that. Happy. You never called your choice. You never called your one. No, I really, and after seeing the promo and I saw the film, what remarkable job each of the actors have done. I mean, Hiten, hats off, man. Really. थैंक यू. मैं ये कहना चाहूँगी कि ओरिजिनली गुंजन जी ने ये सारी कहानियों को ग्रे स्टोरीज़ कहा था. वाकई मुझे लगता है कि ब्लैक एंड वाइट सिर्फ न्यूज़पेपर होता है. हम सब इंसान जो होते हैं, हम ज़िंदगी को चाहते हुए भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते. हम आपस में अपनी दोस्तियों को, रिलेशनशिप्स को, एक दूसरे को हमेशा कोई ना कोई एंगल से जज करते हैं और हमारा बोलने का, बिहेवियर का तरीका हर इंसान के साथ अलग अलग होता है. और उसके वजह से जो हम कहते हैं ना कि इंसान या तो सच्चा या ख़राब होता है, अच्छा या ख़राब होता है, वैसी बात कभी नहीं होती. हर अच्छाई के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स भी होते हैं और कोई इंसान पूरा का पूरा ख़राब भी नहीं होता है. कहीं ना कहीं उसमें कोई अच्छाई छुपी होती है. और हमारी ये जो कहानियाँ हैं वो ऐसे रिलेशंस के ऊपर है जहाँ पर ऊपरी ऊपरी तो हमें सब अच्छा दिखता है, लेकिन जब अंदर झांको तो जैसे हम सबके घरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम वाला इंसिडेंट होता है या प्रॉब्लम वाला शख्स होता है या शायद कोई प्रॉब्लम ही शुरू हो जाती है, पर कैसे उसे समझा जा सकता है, कैसे उसे how you can deal with it and how you can carry on your life after that. So these are very, very interesting stories, something very different than I think it's never been shown before. And I would credit Gunjan क्योंकि हर एक कहानी उन्होंने बड़ी शिद्दत से लिखी है और अपना दिल उसमें डाल के लिखा है. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न why all of us actually agreed to do it. क्योंकि जब सोशल मीडिया पे कोई कांटेक्ट करता है तब हम सोचते हैं पता नहीं ये रियल हो सकता है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल लोग समझते नहीं. आई मीन एवरीवन कैन बी डिसेप्टिव. पर जब गुंजन से हम लोगों ने बात की इंडिविजुअली, आई थिंक इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस. So she put in so much of effort, and the way she spoke, and she was so confident about every subject, for me, for our story, for Sameer or for anyone else's story, जिस तरीके से उन्होंने नरेट किया, वाकई उस पे दिल आ गया और हम लोगों ने बोला कि ये चीज़ तो हमें ज़रूर करनी है. So credit to you, Gunjan, for getting all of us here on board. And honestly, we are so hoping for the audience to receive it just as well. थैंक यू. जब आप बात करते हो ना भाग्यश्री जी, पूरा दिन हम सुन सकते हैं. आप इतने प्यार से बात करते हो. इट्स लाइक सूदिंग वॉइस है ना. या सो मिस सेन, आई वुड लाइक टू नो व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट द स्टोरी. व्हाट वाज योर बेस्ट पार्ट और बेस्ट टेक? The best part was, of course, when I Raiva, asked. can you speak in Hindi, please? This is not the Kapil Sharma show. No? So. Ouch! Anyway, listen. I didn't mean it in a bad way, but I'm just saying that when I asked Gunjan how to and my director Vibhu, I said, give me what should I do for this character differently, and how do I work on this character. So I was very impressed because Gunjan told me only my role particularly in this whole film was based on her life. So I just had to observe Gunjan every day. So yeah, that was very interesting. No, कुछ हिस्सा मेरी जिंदगी से है. Okay. I don't know whether her husband knows this or not. But No, he knows. Now he'll know. पोल खुल गई अभी तो. पूरा. So my first kiss was to a girl, to be honest. I'm straight. I'm very straight, to be honest.
Yeah, but my first, I'm straight, of course, I'm very जब straight. आपका प्रोड्यूसर So am इतना I. बोल्ड होता है तो But husband yeah, सामने it's बैठा है। inspired by that. It's not, of course, it's not my film. All I had to do was observe Gunjan from morning to night. So I had a blast because she's a very colorful personality and very entertaining. So I never got bored and I had a great time shooting thanks to just observing Gunjan. Okay, that's fantastic. And sir, I have a question for you. Sure. How was your entire experience and what was the masti part in the entire shoot thing? So Masti part was like being part of the group, the whole production team. You know, हम लोग actually एक group बना and we call it हम पांच. हम पांच. And we still do a lot of masti in that group. So when I went for the shoot for the very first time, of course it was very, eye-opening for me because unlike other stars, I am a newbie actually. So I am from the US, I am a true NRI. I've been living there for like 26 years. But again, in सबसे मिलके ये सब तो since these guys are also NRIs, those 5 girls, and I was the only guy. And a lot of masti, lot of fun, of course, and then Hiten joined there, and he also joined our group. And we also dragged him into all the conversation, all the fun masti part into it. Of course, Bhagyashri was there, and we, I remember, I was driving her from one place to other place. I was doing multiple jobs, actually, by the way. Yeah. So I was doing this, yes, all of us, actually. So lot of fun. So we were singing in the car. We were, doing a lot of fun when we were not shooting. And yeah, it was total fun experience. Fantastic, fantastic. आपकी accent से ही हमें समझ में आया आप US return है करके, but ठीक है. So I would request Chandana ji, where are you? Yeah, Chandana ji, I would just request you to be on stage like for a few seconds, and please ये जो गाना है आप एक बार हमारे लिए गुनगुना दीजिए. ये गाना तो सब सुन चुके हैं एक्चुअली. इफ आई मे रिक्वेस्ट, हम एक नेक्स्ट गाना अपना रिलीज करने वाले हैं. Oh, sure. जी, कौन कहता है, जो मेरे वन ऑफ माई फर्स्ट क्रश समीर सोनी और मेरे पे फिल्माया गया है. एंड अब मैं आई डोंट वांट टू एक्ट एनी मोर, आई जस्ट वांट टू प्रोड्यूस. बिकॉज मेरे 2 क्रशेस थे, एक जुगल हंसराज और समीर सोनी, और दोनों को अपनी फिल्म में अपने साथ with God's grace was able to act with them. So Chandana ji, I would request you कि वो कौन कहता है जो हमारा next Z Music पे रिलीज होने वाला है, उसकी 2 lines please सुनाइए. Okay, so a very good evening to everybody. I would like to say that this song has been written by Gunjan. तो आप ख़ास गौर कीजिए. The words are very interesting. कौन कहता है सीने में अलमारियाँ नहीं होती. I mean, the first time I heard that, I was so caught up with the words because जब formal lyricist लिखते हैं तो उसमें एक मीटर अलग तरीके से होता है. But here, I was very impressed that the producer could write like this. समीक्षा ओसवाल एंड कीकू शारदा, जिन्होंने बहुत रोमांटिक किरदार प्ले किया है. क्योंकि मेरा मानना है कि क्यों, अगर आप थोड़े साइज में ऊपर नीचे कैसे भी हैं तो क्या आप रोमांस नहीं कर सकते? आई मीन आपको प्यार करने का हक नहीं है? कहानियां मत बताइए, इन्हें देखने दीजिए. मैं ये कहना चाहूँगी कि हैट्स ऑफ टू यू सर, कि बहुत सारी कहानियाँ जो ये बोल रहे हैं कि इनके लाइफ पे है, ये भी बोल रहे हैं कि समीर सोनी जी उनके क्रश थे, फिर काफ़ी कुछ ये स्क्रीन पे दिखने वाला है. एग्जैक्टली. तो पता नहीं कौन सी अलमारियों के पीछे या कौन सी अलमारियों में कौन से खाने के पीछे क्या क्या रहस्य छुपा था गुंजन जी की दिल की अलमारी के पीछे, जो सारी के सारी कहानियाँ यहाँ पर आ चुकी है. सो आई थिंक गुंजन जी, स्पेशल क्रेडिट टू योर हस्बैंड एक्चुअली. Everyone, in fact everyone, the entire team, my husband Sanjeev ji, everyone, Vibhu, Raju ji, I mean everyone. तो of course film जो होती है ना, sorry, भाग्यश्री, I mean you are amazing with the words. और मुझे नहीं पता था कि भाग्यश्री is so creative. Of course we were awed, always awed. Everyone is awed with Bhagyashree. Listen. This is your film. You get the credit. Let's end it here. Superb having, the launch of the trailer and of the songs. और Chandana ji, this is lovely having your voice for all of us. I think सारी दिल की कहानियाँ, दिल के सारे जो क्या बोलते हैं इमोशंस है, वो सब उभर के बाहर आते हैं इन गानों से.
So thank you so much and wish everyone all the best over here. Well, we would request you guys to just come forward for a picture. Okay, so we have a Q&A happening with media. And whenever the Q&A is done, whenever you allow me, I would love to invite my team as well, जो अमेरिका से आई है, because yeah, whenever you allow me. Yeah. मेरा सवाल भाग्यश्री मैडम से है। जी मुझे याद है जब मैंने प्यार किया देखा था, आप उस वक्त भी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन लग रही थी, आज भी बिल्कुल ऑन स्क्रीन और सामने भी वैसी ही लग रही हैं। शुक्रिया। मुझे याद है एक इंटरव्यू में सूरज बड़जात्या जी ने कहा था भाग्यश्री को सलमान को किस करना है। उस वक्त आप कंफर्टेबल नहीं थी, एक मिरर का सहायता ली गई थी। आज इस बोल्ड फिल्म को करने के पीछे ये जो परिवर्तन आया है इतने सालों में, किस तरह से आया आप में? देखिए, बोल्ड फिल्म है क्योंकि बोल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे कुंजन जी ने पहले ही कहा है कि बोल्ड सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि न्यूडिटी दिखाई जाए या अपनी भारतीय संस्कृति को भूला जाए। तो वही चीज़ मेंटेन की इस फिल्म में भी। इस फिल्म में भी किस नहीं है, एक भी किस नहीं है इस फिल्म में। गुंजन जी, मेरा सवाल आपसे है। जी। म्यूज़िक देखते ही मुझे ऐसा लगा, हम तो अभी छोटे हैं लेकिन उस समय के अगर पिक्चर्स देखते हैं तो वो गाना कुछ अलग ही होता था और आज वो लिरिक्स नहीं मिलते हैं, लेकिन ये गाने ने बहुत ज़्यादा मीन्स मन को खुशी दी है, स्पेशली लुकिंग एट हितेन एज वेल एज भाग्यश्री मैम। क्या आपको ये गाना देखने के बाद कितना आपको खुद अच्छा लगा है? क्योंकि आजकल हम वो पॉप म्यूज़िक देखते हैं तो वो समय नहीं मिलता, वो चीज़ें नहीं मिलती है जो आज की उस समय की जो फीलिंग्स होती थी। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों ने जब अपना ये काम देखा तो आपको कितना अच्छा लगा? सबसे पहले जो मैंने कहा अभी अभी कि गुंजन जी ने ये जब लिखा है गीत, इस पे सारे इमोशंस बाहर आ गए हैं। दिल का दर्द समझ में आता है, प्यार का एहसास समझ में आता है, और चंदना जी का जो वॉइस था वो इतनी सुरीली आवाज़ है कि दिल में जाके बस जाती है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने सॉन्ग देखा ये, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। आई मीन आई रियली लव्ड इट। इफ़ आई मे करेक्ट, सो संजीव जी कैन यू कम हियर? संजीव जी ने गाना लिखा, ये गाना मैंने नहीं लिखा। हाँ, ये गाना उन्होंने लिखा, हमारा गाना। ये चांदना जी के हस्बैंड है, तो चांदना जी की खूबसूरती से इंस्पायर होकर उन्होंने ये गाना लिखा है। कैन वी प्लीज हैव चांदना जी एंड सर राइट हियर एक बार के लिए इधर यहीं पे। एंड तालियां मेरे को तबीयत से नहीं बजी यार, बिकॉज शी इज सो टैलेंटेड, दीज टू पीपल, लवली लवली लवली। थैंक यू। या मीडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mayur here from Beyond Bollywood Center. नहीं, कोई बात नहीं। We loved it, I loved it, I enjoyed it, बहुत मजा आया, पहली बार देखा, सुपर, फर्स्ट क्लास। एनीवे सर, प्लीज कैरी। भाग्यश्री जी ने मदद की है इस गाने की पूरी एडिटिंग में। No, I mean she's very very creative. I didn't know that. Listen, this is the first time I've seen the song. Just leave it at that. It's beautiful. Anyway, Yeah, hi, Mayur here from Beyond Bollywood. Hi Gunjan, good to see you. Hey. I think it was in 2020, I think, जब पहली बार इसका जिक्र हुआ था। Obviously 3 साल हो गए करीब, and आज हमने ट्रेलर देखा है। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मीर। और ऑब्वियसली जैसा कहा जा रहा है हॉली बॉली फिल्म, तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक नई इंडस्ट्री क्रिएट की है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए कुछ इस पार या उस पार दोनों होना पड़ेगा? I didn't understand your question. You mean लोग ज़्यादातर इस पार या उस पार ही होते हैं, बीच मझधार तो डूब जाते हैं। No, in the sense, obviously, you're calling it a Bolly and a Holly film. जी। because we live in a Hollywoodish area in America, और मैं we have great shooting locations जैसे मैंने बोला था, तो हमारा इंटेंट है कि हम अपनी हिंदुस्तान से अपने बॉलीवुड स्टार्स के साथ अपनी इंडियन फिल्म्स बनाएं, बट इन आवर Hollywoodish area in America. So that's why we call it Holly and Bolly, you know. And I didn't want to, like I said before, we don't want to incorporate nudity for the heck of it. I love touching bold stories because you know, in a very sensible, mature way, ideally. Obviously आपने जिक्र किया, you know, कि the grass is green, always green on the other side. आपने mention किया कि आप बर्तन मांजते हैं, बस शायद अमेरिका में डिशवॉशर ज़्यादा पाए जाते हैं। डिशवॉशर में डालना भी पड़ता है ना उसको धो के।
निकालना ही पड़ता है। बर्तन सिर्फ अपने ही घर में मांजते हैं, अब ऐसे नहीं कि बर्तन मांजते हैं, डोर टू डोर सर्विस नहीं है ये। नहीं, ये किसने क्वेश्चन पूछा? सॉरी सर, ऑब्वियसली आपने कभी बर्तन मांजे नहीं, ना तो डिशवॉशर में डाले, तो डिशवॉशर में ऐसे ही गंदे बर्तन तो नहीं डाले जाते ना, उन्हें भी धुला के फिर अंदर जाते हैं। मैंने इंडिया अमेरिका दोनों में बर्तन मांजे हैं। कोविड में माने हो गए ना, मांझे हो गए। गुंजन, मेरा एक और सवाल है आपसे। जी। फिल्म की जो कैच लाइन है, ग्रे स्टोरीज ऑफ लव वर्सेस डिजायर्स, सो बेसिकली इस लव वर्सेस डिजायर्स के बीच में इंसान कितना टूटता है या कितना वो सुकून पाता है? देखिए, लव वर्सेस डिज़ायर्स, इसका तात्पर्य ये था कि आप रिलेशनशिप में होते हैं, आप किसी से शादीशुदा हैं 5 साल 10 साल 15 साल से, तो ऑब्वियसली लव तो होता ही है ना। आदत क्या होती है? आई मीन लव इज़ हैबिट, राइट? और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो तो उसमें आप पति पत्नी नहीं, भाई बहन और बहुत तरह के रिश्ते बन जाते हैं एक दूसरे के साथ। पर डिज़ायर्स भी होती हैं समटाइम्स, आई मीन यू कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स, लाइक यू मे हैव एस्पिरेशंस, सो नाउ हाउ डू यू ड्वेल बिटवीन दोज? आपकी रूट्स, आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज़ आपको खींचते हैं, और आपके आप ऑफ कोर्स प्यार भी करते हैं जिसके साथ होते हैं। नाउ डू यू परस्यू दोज डिज़ायर्स, और वो आप हमारी फिल्म में देखेंगे। हमारी एक मैं बात बोलना चाहूँगी, हमारी फिल्म येस बोल्ड हैं, बट इनमें वी हैव वोवन ब्यूटिफुल मैसेजेस विद इन दैम। सो कहीं ना कहीं महाभारत में जाके आप रामायण देखेंगे, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन मेरा हितेन से है। फिल्म 12 तारीख को आ रही है, और मेरे ख्याल से गौरी जी की फिल्म भी 12 तारीख को आ रही है, वो भी 12 तारीख को आ रही है। हैंडल में पारुल। करेक्ट, सेम। तो कैसा माहौल है? उनकी तो खैर पहली फिल्म है। जी। घर में कैसा माहौल है? दोनों अपनी फिल्मों के बारे में डिस्कस करते हो? नहीं, अपनी अपनी फिल्म की प्रमोशन करते, डिस्कस नहीं करते। देख लिए वो देखने आएंगी, फिल्म देखेंगी जब भी देखेंगी, और मैंने वो फिल्म देख ली है, उनकी फिल्म देख ली है। इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट। तो अब कोई जजमेंट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे क्या। इट्स नाइस, लेट द ऑडियंस डिसाइड द फेथ। हम लोग को तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा ही लगता है, हमारा प्रोडक्ट जान से प्यारा है यार, मेहनत की है तो हमें तो प्यारा है। अब इट्स ओवर टू यू, हाउ डू यू टेक इट, हाउ डू यू लाइक इट। पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद इतिहास में पहली बार होगा कि एक पति पत्नी की 2 अलग अलग फिल्म आ रही है। सेम, सही बोला है। कब से बोल रही है? अभिमान। Hi, this is Sohail here over here. Hi, congratulations the entire team. गुंजन जी आपको जैसे कि हमने देखा है कि इतने सारे ensemble cast है and everyone is so beautiful and whatever we saw is excellent, like we liked it so much. Thank you. इतने सारे स्टार कास्ट को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाना तो बहुत एक मुश्किल काम था, एज इफ लाइक दे सेड। तो दे वे द फर्स्ट चॉइस, या बहुत बार ऐसे होता है ना कि, और इसमें से कौन से ओरिजिनल चॉइस इफ यू वांट टू आंसर दैट थिंग, और या फिर अगर ये अभी तो हमने कर लिया, अभी तो बता सकते हैं। इनकी ओरिजिनल चॉइस थी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, और कौन है और भी हैं यार, विक्की कौशल, मगर इन्होंने मना कर दिया ना कि नहीं, हमें इनके साथ काम करना है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर। एक मैं कौन होती हूँ चुनने वाली? एक कहानी अपने पात्र खुद चुनती है सबसे पहले तो। क्या बात है। थैंक यू। और दूसरी बात ये बोलूँगी कि जैसे आप सब मेरी आवाज़ से आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सब देख सकते हैं। आई एम नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, आई एम अ न्यू फिल्म मेकर। जैसे इन सब ने बताया, हमारे तरफ से हो ना, मीडिया से मैं पत्रकार थी। जी, मैं आई वाज अ टीवी न्यूज़ एंकर। जी। सो लेकिन इतने साल 19 साल हो गए थे, मतलब 17-18 साल हो गए थे छोड़े हुए इंडिया को, और एक कीड़ा था कि नहीं कुछ ना कुछ आई मीन वी वांट टू ब्रिंग क्रिएटिव फिल्म मेकिंग हेयर। सो मैं नहीं जानती थी, मेरे पास कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कुछ नहीं था। तो the only way I knew was to, and my business is Job Genie. I am in HR industry for 19 years in America. I approached them for whatever way I could, Insta, Facebook, और कई बार जैसे कीकू ने मुझे 1 महीने बाद जवाब दिया। लोगों ने बोला नहीं कीकू नहीं आएगा, 2 एपिसोड छोड़ने पड़ेंगे उसको कपिल शर्मा शो के, एंड यू कांट अफोर्ड हिम, ऐसा भी बहुतों ने बोला। बट अगेन, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज, पीपल ज्वाइन पीपल। Fantastic. So when you come across authentic, जब आपका इंटेंट अच्छा हो, मैं नहीं बोलती हम परफेक्ट हैं, बहुत सारे फ्लॉज थे, हम तो सीख रहे थे, पर इन सब ने सिखाया भी while working with us. So now to answer your other question, आप मानेंगे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगेन पता नहीं, मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए थे, और इतने सारे जो एंजल्स जुड़े हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट में, इनकी ब्लेसिंग्स थी कि
कई ऐसी कहानियां हैं जब मैं लिख रही थी ना, जब मैं सोच रही थी, ऑफ कोर्स मेरे 2 और राइटर्स हैं इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने सपोर्ट किया। राज कौशल जी को भी मैं बिग टाइम थैंक्स कहना चाहती हूँ। लेट राज कौशल जी, आई एम नॉट किडिंग, मेरे को उन्होंने स्क्रीन प्ले में हेल्प किया। समीर सोनी को जब मैंने रीच आउट किया तो राज कौशल ने इनको भी बोला कि हाँ, Samir was my first cast and big thanks to him that he agreed. And then राज कौशल जी ने 1-2 लोगों को और भी बोला, मुझे जानते थे कि हाँ ये अच्छी लड़की है, अच्छा प्रोजेक्ट होगा, you should give it a try. So big thanks to God bless him. Yeah, but any experience, I mean, तो लिखते sorry sir, I have to address this. आप मानेंगे नहीं, जब मैंने कहानी लिखी मैंने भाग्यश्री को सोच के लिखी सच में, और ब्लेसिंग वो मुझे ईश्वर ने नवाजा। मैंने ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला बिल्कुल सच है, जुगल हंसराज किसके क्रश नहीं थे हमारी, आई मीन आई एम 41 years old. सो समीर सोनी ऑफ कोर्स, ये मैं सच में मेरे 2 क्रशेस थे, क्योंकि ऑल्ट बालाजी की वो आई थी ना बेवफा से वफा, उसी दिन उसी टाइम देख के हटी थी मैं, वो हमारे एनआरआईज में बहुत फेमस हुई थी बेवफा से वफा। तो ये 2 क्रशेस थे, तो यूनिवर्स ने वो मिलवा दिया, आप ये समझिए। और भी बहुत सारे जो आपको किरदार दिख रहे हैं, राइमा सेन, आई मीन सभी लोग जो सोचे थे बहुत सारे ऐसे किरदार वो मिलते गए। सो जी समटाइम सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक द फिल्म तो बहुत ही अच्छी लग रही है, और जिस तरह के जो कहानी आपने जो बताने की कोशिश की है वो मैंने बहुत ही मतलब समथिंग यूनिक और बहुत ही अच्छे में, मतलब वे यू सेड इट बोल्ड है मगर न्यूडिटी के साथ नहीं है, मतलब जो भी कहना है वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया है। पर कभी कभी बहुत बार होता अच्छी फिल्म, अच्छा कंटेंट, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि वो जो जिस तरह का उसको प्रमोशन चाहिए, जो बहुत बार रिलीजेस वगैरह होता है, ये तो आप लोगों के ऊपर है, ये तो ऑडियंस के ऊपर, आप सबके ऊपर है। हम तो सिर्फ ऑडियंस नहीं पर प्रेस यहाँ पर इसलिए गुंजन जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, आप सबको बुलाया है ताकि वर्ड ऑफ माउथ हो, आप लिखे इसके बारे में, अच्छी चीज़ें लिखे। मैं ये सोचती हूँ कि एक ये अपने आपको NRI औरत जो 2 बच्चों की माँ सिर्फ यहाँ और एक सपना लेकर आई थी, तो फॉर मी जब इन्होंने ये कहा मुझे, तो मुझे लगा एज अ वुमन आई शुड सपोर्ट हर। मैं ये सोचती हूँ कि जो भी इंसान अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहता और उसे पाने के लिए बहुत सारी मेहनत और अपने आप को डुबा सकता है, वो इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो it's a blessing actually that it has come here with all of us and you people are there in front. तो इससे ज़्यादा blessing और क्या हो सकती है? See, I'd like to add one thing. I firmly believe that we are living in a world of media. It's the media revolution. You heard of industrial revolution, you heard of agricultural revolution. This is media revolution. Everything is perceptions. And you people are the ones who are running it. Okay? So that is why it is so important for people like us to have your support, right? क्योंकि हम बोलते हैं यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो हितेन मैं वगैरह कितना बोल लेंगे, मैं भाग्य जी कितना बोल लेंगे? इट इज़ अप टू यू पीपल रियली। तो या आई मीन अगर आप लोगों को जेन्युइनली पसंद आया है और एंड यू थिंक व्हाट वी हैव डन इज सेंसिबल, बिकॉज व्हाट शी सेड दैट वी हैव मेड अ बोल्ड फिल्म, not a vulgar film, not a titillating film. It's only the topic. And it's a genuine, sincere effort. Yeah, it's a genuine, sincere film. So, it's up to you, really, to to get the word out. हमने जो करना था हमने कर लिया, आगे it's up to you. Especially I was talking about the theaters. In fact, promotion तो होता है, पर theaters मिलने आजकल बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो that is जो reach, मतलब I'm trying to say, तो वो उस पर how are you, किस तरह से कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं और अगेन आसान नहीं है। जैसे मयूर से मिली थी कुछ साल पहले, किसने सोचा था पैंडेमिक आएगा? No, and I think audience today is smart and they make their own decisions. आप कितना भी बढ़िया ट्रेलर बनाओ, 200-400 करोड़ की फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है। तो it's not about the marketing, it's finally about the content और audience क्या देखना चाहते हैं और उनके दिल में क्या है कि वो क्या देखना चाहते हैं, इसके ऊपर निर्भर है। हमारी कोशिश रहेगी एंड मेनली आई वुड से कि इन्होंने इनका सपना पूरा किया कि इन्होंने जो लिखा उसको पार कर दिखाया, फिल्म बनाई। सो शी मेड हर एफर्ट। अब कहते हैं ना कर्म करना अपने हाथ में है, फल देना भगवान के ऊपर। वैसे फल देना पब्लिक के ऊपर, पत्रकारों के हाथ में भी है। Yeah, definitely.
टॉकिंग अबाउट लव वर्सेस डिज़ायर, तो मैं जानना चाहूँगा भाग्यश्री, हितेन एंड एवरीवन, लाइक ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके लिए आपने उस चीज़ को प्यार किया और फिर वो एक डिज़ायर है कि यू वांटेड, लाइक समथिंग। अब ज़्यादा मत बुलवाइए। I मैरिड माय फर्स्ट लव। लव भी था और डिजायर भी था। अच्छा, हितेन, समथिंग अबाउट यू, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक मतलब आई मीन देखो यार, लाइफ में बहुत ही सुखी आदमी हूँ, मिल गया तो वेरी गुड, नहीं मिला तो चलते चलो आगे, मिल जाएगा, लाइफ इज गुड। राइमा, समथिंग Fantastic. कुछ नहीं हाँ, something anything, it could be something about your role also, कुछ आप मतलब Role, I'm saying it was based on Gunjan's role, but it was an interesting Gunjan's life. No. Sorry. So I mean, you should ask her about her life, but role, it was interesting. It's like I'm married to Gaurav Gera in Seattle, and it's about my friend comes, and it's about exploring sexuality and everything. So it was quite interesting. It is quite different to, I've not done something like this before. समीक्षा का या वो गुंजन और मैंने आई थिंक उसी वक्त ही फॉर्म किया था डायलॉग कीकू को देख के, एंड कीकू वाज आल्सो वेरी क्रिएटिव, वो ही वाज वेरी स्पॉन्टेनियस विद हिज पंच लाइंस। कीकू हैज वेरी गुड पंच लाइंस, तो हमें भी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती थी अपनी। आई थिंक जो आपने लव और डिज़ायर की बात की, मैं जब इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मेरी एक डिज़ायर थी कि कभी मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ काम करूं, जो आई थिंक एनी न्यू कमर हु कम्स इन दैट, वो मेरी हुई। दूसरी डिज़ायर थी जब मैंने अपनी वाइफ को देखा, मैंने कहा यार ऐसी लड़की से शादी हो जाए, वो भी पूरी हो गई। एंड लव इज़, आई लव एक्टिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ऑल दीस गाइस, दैट्स ऑल। Fantastic. गुंजन जी, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। जी। जिस तरीके से एनआरआई वाइफ्स की स्टोरी है, ऐसे ही हमने ऑलरेडी देखी है नेटफ्लिक्स पे फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, जहाँ पर जो है 4 स्टोरीज जो है उन्हीं के, यस आई मीन ही मस्ट बी नोइंग। हाँ, who asked this question? Yeah, okay. Sorry. That is a reality show. Yes. Okay, I am Samir Soni and everybody is playing themselves. This is a film. Yeah. It's fiction. It's about different things. So it's fiction and only the title wives का तो। जी। Can I add to the love and desire? मैं ये कहूँगी कि भाई पहले हमारे टाइम में ये कहा जाता था कि प्यार, हमारे टाइम में बोल सकते हैं ना, अभी तो शादी हो चुकी, तो अच्छा, हमारे टाइम में ये कहा जाता था, कि भाई प्यार एक ही बार होता है। लेकिन आज के ज़माने में प्यार बार बार भी हो सकता है, लेकिन जब आप लव वर्सेस डिज़ायर्स कहते हो तो शायद प्यार एक ही बार होता है, डिज़ायर्स बार बार हो सकते हैं। और कभी खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो नज़र में आनी चाहिए, उस खूबसूरती को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन डिज़ायर्स जब आप अपनी सीमा लांघ कर आप डिज़ायर्स को प्यार बना देते हो, प्रॉब्लम तब होता है। तो लव को लव और डिज़ायर को डिज़ायर अलग अलग ही रखना चाहिए। आप लोगों को इनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल क्रश, स्कूल बॉयफ्रेंड से ही शादी की, उसके बाद इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी, एक बार भी अपने हीरो को छुआ नहीं, मिरर के थ्रू किस करना पड़ा। तो ये जीती जाती वो है कि इफ़ यू लव वन पर्सन एंड दैट्स द ओनली पर्सन, और वो जो क्या लांघने की बात की थी, वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। इनके 2 बड़े बड़े बच्चे भी हैं एंड दे आर वंडरफुल एक्टर्स, सो दैट इज़ द की। सो किसी से अगर सीखना है, सो एडिंग टू इट, भाग्यश्री जी यहीं लुक या हाँ, अभी जो उन्होंने कहा समीर जी ने, उसी को ऐड ऑन करना है। क्या यही रीज़न था कि किसी का भाई किसी की जान में आपकी पूरी फैमिली है? वो तो आप सलमान को पूछिए। He requested and we agreed. That's it. So reuniting with him after 33 years, can you share your experience? Oh, it was wonderful. It's always wonderful. Me and Salman had a wonderful bond of friendship then and even now. Lovely person for me. पहली बार जब मैंने फिल्म शुरू की थी या एक्टिंग शुरू की थी, ऐसे सोचा नहीं था कि इतना आसान होगा एक दूसरे एक्टर के साथ काम करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि भाई किसके लिए भी मैंने मना किया,
सूरज जी को करीबन 7 बार मैंने वापस भेजा क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ मुझे लगा कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मैं नहीं कर पाऊँगी. सो आफ्टर ऑल दैट वर्किंग विद सलमान, he was a gentleman. It was, I mean, each moment that we've spent together, me, Salman, Suraj ji, it will be etched in my life forever, as is Maine Pyar Kiya and all of you. So, thank you so much कि इतने सालों बाद भी आप तो भी हम दोनों को देखना चाहते हैं, अपने दिल में रखते हैं और प्रेम और सुमन का प्यार हमेशा हमेशा जिंदा रहे. Yeah, I wanted to ask Gunjan, how did you decide to cast yourself as one of the characters? कुछ मतलब मजबूरी थी कि आर्टिस्ट मिल नहीं रहे थे और पहले से प्लान था? इन्होंने बोला था ना कि मैं इनका फर्स्ट क्रश हूँ, तो जो मेरे ऑपोजिट यही है. अच्छा, ओके. नहीं, I'll tell you. So मुझे लगता था कि I've been a theatre actress in Boston, तो मुझे लगता था कि मुझे एक्टिंग बहुत शौक था. And of course, लेकिन I realized while producing the film कि you cannot do justice to acting because आपको इतना दिमाग में चल रहा था, खाना आया नहीं आया, ये हुआ नहीं हुआ, वो टाइम हो रहा है, जल्दी करो, you know, gaffers को जाना है, and you know the technicians there are very expensive, you know, I mean the obviously we hired a lot of Hollywood crew too, so तो ऑफ कोर्स एक्टिंग का कीड़ा था. अगर मुझे कोई हायर करना चाहेगा मैं फ्री में भी काम कर लूँगी, लेकिन जब मैं प्रोड्यूस करूँगी आई डोंट वांट टू एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल इज़ बिगर देन द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग माई सेल्फ. तो येस, एक्टिंग का कीड़ा थोड़ा बहुत है, बट उससे ज़्यादा आई एम अ बेटर प्रोड्यूसर देन एन एक्ट्रेस. She's done a great job though. I have to say I've done most of my scenes with her. For a person first time facing the camera, I think she was excellent. You all were very encouraging. Thank you. No, I am a horrible singer, sir. I am a horrible singer. नहीं, राइटर हूँ मैं, राइटर हूँ, पत्रकार. जैसे मैंने बोला तो कविताएं बचपन से लिखती आ रही थी. आई वॉज नेशनल लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन विनर, बट या तो अभी भी सीख रहे हैं सर. फिल्म मेकिंग इज़ अ वास्ट साइंस. अच्छा, all your subjects इसके बाद like maybe you make a sequel on this called NRI Husbands or maybe I'll tell you, beautiful. So we have phone stories in progress right now. Phone stories. अब phone, thank you for sharing that. Phone क्या है? आजकल phone is no longer a accessory. It's like a body part. हम लोग टॉयलेट्स में भी अपने साथ फ़ोन लेके जाते हैं, और फ़ोन जानता है हमारे अंदर कितनी सॉरी मैं अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्रमोशन कर रही हूँ, बट फ़ोन जानता है हम कब नाराज़ होते हैं, हम कब खुश होते हैं, कब किसके साथ हमारा क्या सीक्रेट लाइफ है. अगर फ़ोन एज ए नरेटर कहानियाँ बताना शुरू करेगा तो क्या कहानियाँ होंगी. तो वी वर्किंग ऑन फ़ोन स्टोरीज. नेक्स्ट वी वर्किंग ऑन सुपर नेचुरल हॉरर स्टोरीज बिकॉज हमारे न्यू इंग्लैंड से विचक्राफ्ट, हैलोवीन जो आप आजकल सेलिब्रेट करते हैं वो शुरू हुआ था, तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, एंड और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. तो येस, दे आर समहाउ बोल्ड सब्जेक्ट्स एज वेल, बट अगेन वी वुड, हमारा इंटेंट ये होगा उनको एलिगेंट, ग्रेसफुल, इम्प्लाइड वे में प्रेजेंट करें. एक NRI क्रशेस भी हो सकता है जी, बिकॉज योर फेवरेट वर्ड. इनको टीम में जरूर लेना चाहिए. You know, one little thing मेरे को थॉट था जो So हाँ यार, कॉपीराइट है हमारे पास, कॉपीराइट मत बोलना किसी को. अच्छा आइडिया. No, you know what occurred to me when I saw the film and when we were shooting, और आजकल जो फिल्म्स बनती हैं या बन रही हैं and they're doing really well, is what happens is somewhere along the line the आजकल की जो फिल्म्स हैं, I mean not just आजकल, पहले भी, वहाँ उस पर कमर्शियल पे बहुत फोकस रहता है कि क्या हमने हिट फिल्म बनानी है, क्या चलता है. जैसे किसी ने पूछा, बोला जो गाने हैं kind of not the kind of songs जो आजकल चलते हैं, you know, उस नहीं है. So there's a lot of focus on the business aspect of filmmaking and कि या क्या चलेगा, क्या hit है, क्या packaging. So when a person makes the first film, it's straight from the heart. They are telling a story because they want to tell a story. They're not trying to make a hit film. Of course, we wish for that. We hope for that. So I think that's another thing that's very unique about this film. It wasn't made thinking, अरे यार इसमें ये होगा, वो होगा, वो होगा. So again, Gunjan. Thank you. Fantastic. My question is for Rahima. Rahima Sen, you've been awfully quiet. I mean, आप कुछ बोल नहीं रही हैं. क्या सोच रहे हैं? I'm wondering.
Now you just talk about the character you told कि इनके ये गुंजन को observe कर रही हैं. Please say something about the movie in length at least so that we know कि what character was. कैसे approach किया उसको character को, you know, what are your feelings Character about? approach, I told you. I was just observing Gunjan from morning to night. It's based on her life. And the movie basically, I don't know whether Gunjan got in touch with me on social media or not. I can't remember that part. But I was very happy because I saw she was trying so hard and being a woman, like she said. It was just like natural for me to say yes. And I said, great star cast, so why not be a part of this film? And of course, the story is also very different. You know, I don't think anyone's made something on the lives of NRI wives. We do think that life over there is very glamorous. And it's not, clearly. Even when I went and stayed with them, I can't say it's worse, but it's difficult. So yeah, so she's covered all those aspects. So yeah, I had a great time shooting with her. But my only main reason to work in this film was, again, I would say, is Gunjan. Thank you. And the team, our team Thank is you, fun. media. I would request all of you all to please come forward. We'll click a nice group picture, and later we will have Gunjan ma'am's team picture as well. Team. Yeah.